Okay, indicators and acid-base titration. So now we are going towards acid-base equilibria and indicator equilibria. What are indicators? We know it from our class of O levels, maybe class 6 to 7, maybe there's something about indicators. So indicators are solutions or substances which tells us that whether the solution has a given solution is acidic, basic, or neutral. So indicators tell us about the nature of the solution. There are indicators which just tell us that the solution is whether now acidic or basic or it's neutral. But there is another indicator which is called pH indicator, which tells us about the pH as well. But in this topic, we will be dealing with only those indicators which which change their color at endpoint or at the neutral point, and they have two distinct colors. One color is an acidic medium, and the other color is an alkaline medium. So, for example, if you see the color in the test tubes, you can see one test tube is pink and the other test tube is colorless. So this is the indicator added to this is phenolphthalein. We know that phenolphthalein is pink in alkali and it is colorless in acid. So we don't need to learn the formula of the phenolphthalein, but if you see the equilibria present in here, this reaction is reversible because when you will add hydroxide ions, alkali, to a colorless solution of your indicator, the indicator reacts with the hydroxide ions, changes its structure slightly, and it changes its not only the structure but it also changes its color to pink. But when you add in the reverse direction, if you add hydrogen ions, you start adding hydrogen ions, the color of the solution will remain pink. उस वक्त तक पिंक रहेगा जब तक कि हाइड्रोजन आयंस सारे के सारे जो ये नए राइट हैंड साइड पे जो आयन बने हुए हैं उसमें यू कैन सी देयर आर टू ओ नेगेटिव एंड्स, वो सारे के सारे जो ये आयंस हैं ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे आयंस ख़त्म होंगे तो जब आप फिर और हाइड्रोजन डालोगे तो आपको कलरलेस साइड वाला जो इथेनॉक्सिन का स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। You will obtain the structure of phenolphthalein which will be colorless, which is written on the left hand side of the equation. But this will form after the right hand side structure is fully consumed. Then you will see this color on the left hand side structure. So you see when you add alkali, the structure of indicator changes towards the right hand side structure, in which you can see two benzene rings and one cyclohexadiene. But when you start hydrogen ions, and it comes to such an extent that to reach neutral point, the color will change because the structure of the indicator has also changed, which has the left hand side structure. In this left hand structure, you can see there are three benzene rings with a COC bond in between them, and there is an OH bond there. So there are two OH bonds, टू फिनोलिक रिंग्स हैं, एक सी ओ सी ईथर लिंक है इसके अंदर। तो लेकिन जब आपने हाइड्रोक्साइड डाला था तो इसके दोनों जो फिनोल ग्रुप्स थे वो ख़त्म हो गए थे और ईथर लिंक में से दो ईथर लिंक में से एक ईथर लिंक भी ब्रेक हो गया था। तो ये कलर चेंज करता है। दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमें इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करना मुश्किल है और हमें याद करना भी मुश्किल है, एंड नथिंग विल बी आस्क्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर। So what we will do is for our ease, we will represent an indicator as HIN. HIN is an unionized indicator, and if it ionizes, it forms H positive ion plus IN negative ion. This is according to Lori-Bronsted concept. So you can say that indicator is a Lori-Bronsted acid. It is a weak acid, and it ionizes to form hydrogen ion and IN negative ion. According to Lori-Bronsted concept, when an acid ionizes, it forms its base, which is called conjugate base. तो आई एन नेगेटिव इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये आप जब किसी भी इंडिकेटर की सोल्यूशन बनाते हैं तो जनरली यही यही उसकी हालत होती है। देर आर सम अनआयनाइज्ड इंडिकेटर्स एंड देर आर some ionized form of the conjugate base form of the indicator as well in the mixture, in the solution, aqueous solution of the indicator.
अब अगर आप उसमें एसिड डालते हो, इफ यू ऐड एसिड टू दिस सोल्यूशन, सपोज आपने इस सोल्यूशन को एसिड में डाल दिया या इसमें एसिड को डाल दिया, तो आपने क्या किया, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ गई। इफ यू ऐड H प्लस आयंस, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड चला जाएगा, बैकवर्ड फेवर कर देगा, बैकवर्ड जो है वो फेवर करेगा। और बैकवर्ड के फेवर करने की वजह से आपको जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड फेवर करेगा। उससे किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उससे किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, वो है HIN की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। HIN की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देगी और आपको वही कलर दिखाई देगा जो HIN अनआयोनाइज्ड कलर होता है। HIN increases and HIN color of HIN is seen. HIN is seen. ठीक है जी, तो कलर जो है वो आपको HIN का दिखाई देगा। तो ये ध्यान में रखें कि HIN has color A. Suppose its color is, suppose the color of HIN is A, इसका कलर A है और IN नेगेटिव का जो कलर है वो B है। तो जब आपने एसिड डाला तो आपको कलर ए दिखाई देगा एसिड डालने से। फॉर एग्जांपल फिनॉक्सिलीन का ये कलर जो था ये ए था आपका, दिस वाज द कलर ए एंड पिंक कलर वाज द बी। तो जब आप इस में एसिड डालते थे तो एसिड के हाइड्रोजन आयंस इंडिकेटर के नेगेटिव आयंस के साथ जुड़ना शुरू हो जाते थे और वो कन्वर्ट हो जाते थे टू अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर, and HIN is formed and the color A which is the colorless for that of phenolphthalein वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके रिवर्स में अगर आप यू ऐड एल्कली, यू ऐड हाइड्रोक्साइड आयन, एक्चुअली एल्कली में कौन सा आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, तो फिर क्या होगा, फिर ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड फेवर होगा, फॉरवर्ड जो है वो फेवर होगा और आपके पास IN नेगेटिव जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और अब आपको कलर क्या दिखाई देगा, बी कलर जो है वो सीन हो जाएगा, बी कलर इज सीन। तो जब आप एल्कली डालते हो तो रिएक्शन जो है वो एक साइड पर जाता है, जब एसिड डालते हो तो दूसरी साइड पर जाता है। So due to this, the relative concentration, I'm telling you about the relative concentration of the ions, the relative concentration of HIN and IN negative ion, इसको हम, ये हमारी इसकी बैकबोन है, relative concentration of HIN and IN negative। अगर HIN की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसका कलर दिखाई देगा, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होते हुए IN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको उसका कलर दिखाई देगा। तो दिस इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स। जो आप जब भी देखें, फिर से देख लीजिए, यू कैन सी दैट इफ़ यू ऐड हाइड्रोजन आयंस, so this reaction will go to the backward side, IN negative will combine with H positive ions to form HIN। तो कलर जो है IN नेगेटिव का उस वक्त तक दिखाई देता रहेगा जब तक IN नेगेटिव जो है वो लार्जर कॉन्सेंट्रेशन में है। जैसे जैसे IN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और HIN अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपको कलर जो है वो चेंज दिखाई देगा। So as this is a threshold between the relative, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगी आपको उसके कलर दिखाई देगा। तो इन केस ऑफ फिनॉक्सिलीन
आपने भी देखा था ऊपर भी, हाइड्रोक्साइड आयन डालने से आपका HIN जो है वो कन्वर्ट हो रहा था टू IN नेगेटिव में, जिसमें आप देख रहे थे O नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिवली चार्ज एंड्स थे उसके अंदर, तो वो नेगेटिवली चार्ज इंडिकेटर्स की जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें कन्वर्ट हो रहा था बी में जिसमें अवेलेबल थी, तो आपको कलर पिंक दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उस पिंक कलर में आप वापस एसिड डालना शुरू करोगे, वापस एसिड डालना शुरू करोगे, तो कुछ देर वो पिंक रहेगा जब तक कि IN नेगेटिव की जो कॉन्जुगेट बेस की है कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा रहेगी। जब से ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते होते it will become lower than the concentration of HIN, which is the unionized form of the indicator, which is marked as A by me in this diagram. You will see the color of the indicator change suddenly from pink to colorless or from B color to A color. So this is the how the color of the indicator changes. अगर हम suppose करें, I take another example of methyl orange. Methyl orange. Methyl orange. So what happen is that methyl orange का जो color A है, यानी कि जो उसका color acid में है, वो उसका pink है. Its color is pink या red भी लिखते हैं, pink or red. That is the color A of methyl orange. Whereas color B of methyl orange is yellow. That of color B is yellow. Good. So what happen is that कि जब आप उसको आपने इंडिकेटर को एल्कली में डालोगे, तो एल्कली के आयंस जो हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, दे विल रिएक्ट विद HIN एंड कन्वर्ट इट इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड IN नेगेटिव आयंस. तो बेसिकली जो HIN है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर तो डिसोसिएट होता है टू H पॉजिटिव आयन एंड IN नेगेटिव आयन. उससे क्या होता है, IN नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है और कलर जो है वो येलो हो जाता है. इसके ऑपोजिट, जब आप उस IN नेगेटिव इंडिकेटर की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा है, सोल्यूशन येलो है, इंडिकेटर कलर आपको येलो दे रहा है, अब आप उसमें एसिड डालना शुरू करो, तो ग्रेजुअली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपके IN नेगेटिव आयंस हैं वो डिक्रीज होगी और HIN की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी. And a threshold will come at neutral point when the concentration of HIN will increase slightly from that of the IN negative conjugate base. तो आपको जो है मिथाइल ऑरेंज कलर येलो से पिंक होता दिखाई देगा. सो ये कलर जो है ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द relative concentrations of HIN and IN negative. I hope you've got this principle of the working of indicators कि कैसे अपना color change show करते हैं. The color change is explained by this acid base equilibra. Acid base equilibra से ये color change जो है वो आपको explain किया मैंने. तमाम indicators में ऐसा ही होता है, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, चाहे phenolphthalein हो, चाहे ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो या ब्रोमोपेसॉल हो, whatever the indicator is there, you see two distinct colors and you see a color change at end point. तो वो color change क्यों आता है? Because of the relative concentration of the indicator, unionized indicator and its conjugate base, the ionized form of the indicator, the negative ion of the indicator. तो ये इसका जो है वो प्रिंसिपल है. अब आपसे अगर वो कहें कि इंडिकेटर का रिएक्शन जब आप एसिड डालते हो तो तब क्या होता है, वो रिएक्शन आपको मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, वो भी आपको 2 नंबर के लिए आ सकता है. इन एसिड द रिएक्शन विल बी लाइक दैट. हाइड्रोजन आयंस, जब आप एसिड डाल रहे हो तो हाइड्रोजन आयंस विल रिएक्ट विद IN नेगेटिव आयंस, IN नेगेटिव आयंस टू फॉर्म HIN. तो ये रिएक्शन होता है और इसको आप फिर रिवर्सिबल रिएक्शन से नहीं शो करते क्योंकि रिएक्शन एक साइड पर फेवर हो जाता है. जबकि अगर आप उसको रिएक्शन को करते हो इन एल्कली, अगर आप एल्कली डालते हो तो इन एल्कली जब आप उसके अंदर एल्कली ऐड करते हो
तो फिर रिएक्शन कुछ यूँ होता है कि एल्कली के जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं OH नेगेटिव आयंस, दे रिएक्ट विद HIN टू फॉर्म, बेसिकली बन जाता है, अगर आप OH को H के साथ मिलाएं तो H2O बन जाता है, प्लस IN नेगेटिव बन जाता है, IN नेगेटिव बन जाता है और आपको उसका कलर दिखाई देता है। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो आपको लिखने भी आने चाहिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट अ रिएक्शन व्हेन एन एसिड इज एडेड इन इंडिकेटर। तो आपका ये रिएक्शन होता है H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव टू फॉर्म HIN, यानी कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फेवर करता है। Whereas when you add alkali, the hydroxide ions react with the unionized form of the indicator and ionizes to form IN negative ions and water is formed. तो ये दो रिएक्शंस हैं जो कि आपको लिखने के लिए आ सकते हैं, एसिड एंड बेस। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इसको भी आप याद रखें ताकि आपको पेपर में इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ?